हमारी क्लास में अभी कुछ लड़के डॉर्मेंट हैं और कुछ लेटेंट हैं। इनमें डिफरेंशिएट करिएगा। कौन करेगा? हाथ खड़ा करे। ये दो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़ी हैं। यस, रुताब और रहमान। सर लैटिन में जो है एक्टिव तो होते हैं, मतलब एक्टिव तो होते हैं लेकिन हिडन होते हैं। अपनी एक्टिविटीज जो है वो हिडन नहीं करते हैं। वाइल डॉर्मेंट में जो कम्प्लीटली इनएक्टिव होते हैं और अपने जो प्रोसेस वगैरह है वो भी नहीं करते। सही है, वेरी राइट। सो in other words, we can say the some participants of this class, they are active but they are hidden. It means they are not talking, they are not participating in our class. They are present there, they exist in our class, but they do not participate at all, at any cost. वो बोलना भी नहीं चाहते, सिर्फ या तो सुन रहे हैं या तो बस ऐसे ही खामोश बैठे हुए हैं। और ये है हमारे हो गए लेटेंट। हाँ, लेटेंट, यस। और दूसरे हो गए डॉर्मेंट, वो अभी सोए पड़े हैं, वो क्लास में है ही नहीं। या तो उनका जस्ट मोबाइल खुला हुआ है और सोए पड़े हैं, या मोबाइल खोल के कहीं चले गए हैं। तो वो डॉर्मेंट स्टेज में एक्टिव नहीं है किसी, अगर एक्टिव हैं भी तो किसी और चीज़ में, या सोने में एक्टिव है या किसी और एक्टिविटी में है। बहरहाल, they are not active in, at least in our discussion forum, so we can say they are dormant and latent. चले, आपने रिव्यू ना किया, सही। मैंने दो टर्मिनोलॉजीज आपको रिव्यू के लिए दे दी है। So let us start for the today's talk. A very important talk for today, though it needs a huge series of the lectures, but I will try my level best to compile and summarize everything that you can understand and I can understand myself. I cannot claim myself that my communication skills are good or I'm delivering very good, because after every lecture I never feel satisfaction. I always feel that still I'm deficient to deliver, and I need to improve myself, and I need to improve my qualities and my hard working so that I can deliver very effectively and very efficiently. So I always feel regretful when I finish your lecture one time. But it is again this on the other side, it is again a very big, very huge task whenever you will have a new course subjects being assigned. So it is a very huge task for me to get in. So if you feel, I'm sorry for that, and I will try my level best to make the things clear to you and me as well. And I'm no doubt I'm also learning from you guys many things. Uh, the seniors are very much good than us, and I still feel that I'm not good enough like them. I was looking into the PPTs of our senior teachers now in the morning of the same this course 301. I feel that their PPTs are very good. They are just putting only points in the PPTs and a very big font and size. So they might have a very good background knowledge, so they can discuss and talk. They don't need to put a huge material on the PPT slide, which I always dislike. But sometimes, if because of the shortage of the time, I can put these, because in the future, sometimes a strategy, my strategy, that in future these same PPT slides will help you to rememorize the things for the preparation of the quiz test and your Vivas examinations. Hope this will go very sound and very pleasant and very interesting for you guys. I always try my level best to make the things more interesting so that I can capture your attention and making the learning process very easy and very delightfully, so everybody can learn. I am really very sorry I'm going in English.
तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि लेक्चर को मज़ेदार और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने की पूरी कोशिश रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो हैं उसको गेन कर पाएँ, नॉलेज उनके तरफ ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर वो अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, वी डैम केयर। बट ये बात है कि जब आप थ्योरी का पेपर देंगे तो वहाँ पे रोमन इंग्लिश, उर्दू ये सारी नहीं चलेंगी। जैसे मैसेज में लिखते हैं मैं आ रहा हूँ, MEIA, AARAH, वो जो भी लिखते हैं उनके मार्क्स ज़ीरो हो जाते हैं। तो इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी। आप भले उर्दू में पढ़ें, उर्दू में बात करें, सिंधी में बात करें, पश्तो में, लेकिन जब आप पेपर थ्योरी का देंगे तो वो इंग्लिश में ही होगा। So you must improve your language skills for speaking, writing, reading, and listening. So there are many ways to improve these things. I'm not going there. So आप जो है ना अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव रखें। कभी कभी नॉलेज बहुत होता है लेकिन बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता, बोल नहीं पाता। नॉलेज बहुत होता है, वो हेजिटेट करता है, तो थोड़ा ग्रिप ले लें। English is a very compulsory subject for you guys now, not only in our country, but whenever you will have a chance to go abroad, it will help a lot. So today we are going to learn about general systematic states. These are very important from different aspects of disease diagnosis. So today we are going to learn, and I'm giving you a brief introduction about the general systematic states. I found this particular title in the book of Radiostwitis, textbook of veterinary medicine, Radiostwitis. It is available with you guys. And today's PPT is wholly solely I made from that book. And in future I will improve its different aspects. So what are the general systemic states? There are several general systemic states that contribute to the effect of many diseases. So for example, they are very interlinked. ये जो systematic states हैं ये हर डिजीज़ में या मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ में ये पाए जाते हैं, जो कि पेक्यूलर साइंस होते हैं फॉर एनी डिसऑर्डर और एबनॉर्मेलिटी। तो उनमें आ गया जी फीवर में फिर हम इसको कैटेगराइज करते हैं हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, दो कैटेगरीज हैं, फिर उसको आगे डिफाइन करेंगे। दूसरा है जी सेप्टिसीमिया। ये सेप्टिसीमिया फीवर मिलते जुलते टर्मिनोलॉजीज हैं लेकिन थोड़ा इनमें डिफरेंस है। उसके बाद है टॉक्सीमिया। टॉक्सीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे पहले हम पढ़ रहे थे टॉक्सिन्स एंड पॉइजन्स। उसके बाद आता है जी एसिड बेस बैलेंस, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी पढ़ेंगे, और बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स में एसिड बेस बैलेंस किस तरह मेंटेन है, वो डिस्टर्ब होता है तो क्या साइंस और सिम्टम्स होते हैं। और इन द एंड हम इसको थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे इसको। In the end, we will have a touch with the pain and stress. So these are the things, they are very common in every disease and every problem, but breed is specific. Different breeds में different किस्म के symptoms और signs दिखने में आते हैं, तो हम इनको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें आ गया फीवर के साथ हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, सेप्टिसीमिया, देन टॉक्सीमिया, acid base balance, pain and stress. So first of all, there is a hypothermia, hyperthermia and fever. Very brief introduction about these. Farm animals maintain relatively constant body core temperature. बॉडी टेम्परेचर के हवाले से जब भी आप बात करेंगे तो ये जहन में रखने का है कि दो किस्म के टेम्परेचर्स होते हैं होम्योथर्मल एनिमल्स में। एक होते हैं पाइक्लोथर्मल, दूसरे होते हैं होम्योथर्मल। ये फिर आप डिफरेंस देख लीजिएगा डिक्शनरी से। तो ये है कोर बॉडी टेम्परेचर, वो है जो कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है,
मोस्ट ऑफ दी मैमल्स जो हैं वो होम्योथर्मल हैं, जो कि बॉडी टेम्परेचर उनका अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ मेंटेन रहता है। और दूसरा है सरफेस टेम्परेचर, जो कि स्किन का है, और वो सरफेस टेम्परेचर कोर टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड हाई भी हो सकता है और लो भी हो सकता है ड्यू टू एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। Mr. Abdul Hasib, you can mute all, so don't worry, we may not be muted by your options. What I feel, जब कोई माइक खुला हो किसी का तो आप ऑप्शन में जाके म्यूट ऑल कर दें, तो वो सारे म्यूट ऑल हो जाएंगे, आप और मैं नहीं होंगे। आई Okay, थिंक sir, I did it, sir. ओके, थैंक यू। Okay, sir. सो कोर बॉडी टेम्परेचर जो अंदर का बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, दूसरा सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो कि स्किन का है। और स्किन का टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का अंदर के एनवायरनमेंटल टेम्परेचर कोर टेम्परेचर पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी विंटर है, हमारे बाहर का एनवायरनमेंटल टेम्परेचर 10 है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर फिर भी आपका 37 पॉइंट समथिंग होगा या 98.6 होगा डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बाहर के टेम्परेचर से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड वेरी करेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जाएगा एक्सट्रीम पे। दिस होम्योथर्मिक स्टेट इज अचीव्ड बाय फिजियोलॉजिक एंड बिहेवियरल मैकेनिज्म्स that modify either rates of heat loss from the body or the rate at which heat is produced by metabolism of feed or body energy reserves. तो एक ही सूरत में ये कोर बॉडी टेम्परेचर डिस्टर्ब होगा जब आपका होम्योथर्मल मैकेनिज्म, जो कि थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम भी कहेंगे, जो कि हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो रेगुलेटरी सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर आपकी बॉडी का कोर टेम्परेचर शूट अप भी हो सकता है और उसमें डाउन भी जा सकता है, उसमें डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, फिर वो अपने कंट्रोल से निकल जाता है, होम्योथर्मिक मैकेनिज्म डिफॉल्ट हो जाता है उसमें, ठीक है, फॉल्टी हो जाता है। तो ये जो होम्योथर्मिक मैकेनिज्म है, ये हीट लॉस और हीट गेन के उसूलों पे चलता है कि कितनी हीट लॉस हो रही है बॉडी से और कितनी हीट गेन हो रही है, उस हिसाब से चलता है। वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट किस्म के तौर तरीके हैं हीट लॉस करने के और हीट गेन करने के, और उसी पे ही ये मेटाबॉलिज्म, ये जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है। जो हीट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ फीड की मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से हीट प्रोड्यूस होती है, जो कि बॉडी एनर्जी रिजर्व करती है। The body temperature is a reflection of balance between heat gain from the environment. हीट गेन रेडिएशन के थ्रू भी होती है। हम हीट हासिल किस तरह करते हैं? थ्रू द रेडिएशन सोर्स, सनलाइट रेडिएशंस, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। 3 किस्म है जिससे हम हीट गेन करते हैं। आर काज्ड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेंटेनेंस, एक्सरसाइज, ग्रोथ, या आपके बॉडी में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है विद इन इनसाइड द बॉडी, उससे भी हीट जनरेट होती है जो कि बॉडी उसको गेन करता है। या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी हीट गेन होगी, क्योंकि मूवमेंट होगी, जहाँ पे मूवमेंट होगी वहाँ पे हीट जनरेट होगी। ग्रोथ जैसे ही बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। लैक्टेशन की वजह से जब एनिमल लैक्टेशन पीरियड में आता है तो उसका टेम्परेचर हाई रहता है। गेस्टेशन पीरियड में टेम्परेचर रेज होता है, एंड फीडिंग, जब वो फीडिंग कर रहा होता है उस टाइम पे भी हीट गेन होती है। एंड हीट लॉस टू द एनवायरनमेंट, वो भी रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एवापोरेशन। यहाँ पे 4 किस्म है। हीट गेन करने के 3 किस्म है, एक रेडिएशन है, कंडक्शन है एंड कन्वेक्शन। लेकिन हीट लॉस करने के 4 हैं, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एवापोरेशन। ये टर्मिनोलॉजीज आगे जाके डिस्क्राइब होने वाली हैं। आर काज्ड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी,
मेटाबॉलिक एक्टिविटी से भी हीट लॉस होती है। मिल्क रिमूवल, आप मिल्किंग कर रहे हैं, मिल्क जैसे रिमूव होता है बॉडी से तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। फीकल एलिमिनेशन, एनिमल गोबर करता है, उसमें हीट लॉस होती है। एंड यूरिनरी एलिमिनेशन, और उसके अलावा भी सांस लेने की सांस लेता है जब आदमी, एक्सपायरेशन करता है तो भी हीट लॉस होती है। चलिए देखते हैं कि हीट प्रोडक्शन के कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हीट प्रोड्यूस हो रही है। एक तो हो गई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, दूसरा हो गया डाइजेशन ऑफ फीड, मस्क्यूलर मूवमेंट, जितनी मसल मूवमेंट एक्सरसाइज के थ्रू हो या इंटरनल मस्क्यूलर वॉलेंटरली मसल्स की मूवमेंट हो, उसमें हीट प्रोडक्शन होती है। अच्छा, उसमें भी एक कैटेगरी है शिवरिंग। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मींस जब भी बॉडी को एक्सपोयर होता है किसी कोल्ड इन्वायरमेंट से तो बॉडी में शिवरिंग पैदा होती है, उस शिवरिंग से भी हीट जनरेट होती है। मसल शिवरिंग करते हैं तो उससे भी हीट प्रोडक्शन होती है, इनहांस्ड होती है। अच्छा, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, ये हो गई शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग किसी भी काज से हो, चाहे फीवर से हो, चाहे कोल्ड एक्सपोयर हो बॉडी का, तो उसमें शिवरिंग होती है। शिवरिंग होती है तो मसल टोन बढ़ता है, मसल टोन बढ़ता है तो हीट प्रोडक्शन होती है। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मींस, थर्मोजेनेसिस में आप कंफ्यूज ना होने चाहिए, क्योंकि थर्मोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन। व्हाट डज मीन, हेलो, जहां पे भी जेनेसिस आता है इट मींस फॉर्मेशन। होम्योजेनेसिस, हीमोजेनेसिस मींस ब्लड फॉर्मेशन, थर्मोजेनेसिस मींस हीट फॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी चीज की सिंथेसिस और बनने को जेनेसिस कहते हैं। तो थर्मोजेनेसिस प्रोडक्शन ऑफ द हीट। नॉन शिवरिंग किस तरह होती है, इज आल्सो इंड्यूस्ड बाय एक्सपोजर टू कोल्ड and is the mechanism in which heat is produced by calorigenic effect of epinephrine and norepinephrine, which are released into the blood in increased amount. तो जैसे ही आपको कोल्ड शॉक लगता है, भले आप शिवरिंग ना भी करें तो भी बॉडी मैकेनिज्म उसको आइडेंटिफाई करता है कि आपको सर्दी लग रही है या एनिमल्स को सर्दी लग रही है, तो उसका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और वो ब्लड में आके उसकी हार्मोन्स की तादाद बढ़ जाती है, जिससे हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके फिर अगेन डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारे मैकेनिज्म हैं कि हीट को किस तरह से जनरेट या सिंथेसिस किया जाता है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि नियोनेट्स के साथ लागू होती है। जो न्यू बॉर्न यंग वंस हैं उनमें इतनी पोटेंशियल नहीं होती बॉडी ग्रोथ की या ब्लड की कि वो हीट के साथ कोल्ड इन्वायरमेंट के साथ मुकाबल हो सके। तो उनको मोस्टली इन विंटर सीजन्स में जो शीप और गोट और बफलो और काव के जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं वो कोल्ड शॉक की वजह से उनमें डेथ भी हो जाती है। तो बहुत ही ओनर्स और अटेंडेंट्स एहतियात करते हैं, लेकिन कभी कभी ये फिर हो भी जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी आप सो रहे हैं और बफलो की डिलीवरी हो गई, आपको नहीं पता, तो फिर वो अगर उसको कोल्ड इन्वायरमेंट में, पर्टिकुलरली तो एनिमल को पार्लर में रखते हैं, जैसे ही वो नियर टू पार्चुरेशन होता है तो हर फार्म पे कोई एक अलग सा रूम बना होता है जो कि उसकी बेडिंग बहुत ही सॉफ्ट रखते हैं और उसको बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखते हैं ताकि कोई ठंड या गर्मी वगैरह ना लगे जानवर को। तो वहाँ पे उसको रखते हैं कि अगर ऑल ऑफ सडन डिलीवरी हो भी जाए तो उसको इतना नुकसान ना हो। लेकिन अगर इस तरह का प्रोटोकॉल कहीं पे नहीं है, गुड मैनेजमेंट फॉर्म पे नहीं है, तो न्यू बॉर्न यंग बेबीज़ को कोल्ड शॉक या हीट स्ट्रोक दोनों लग सकते हैं, क्योंकि वो अभी नया है एनवायरनमेंट में, तो उसको ये दोनों चीज़ें अटैक कर सकती हैं। तो उसमें अलमाइटी अल्लाह, मदर नेचर ऑफ द अलमाइटी अल्लाह हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रिएचर। उसमें अलमाइटी अल्लाह ने एक चीज़ रखी है कि जो न्यू यंग बॉर्न होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स के हों, एनिमल्स के हों, उसमें एक टाइप का
अडीपोज टिश्यू रखा है जिसे कहते हैं ब्राउन अडीपोज टिश्यू। ये फैटी टिश्यूज हैं। दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं वाइट अडीपोज टिश्यू WAT, और दूसरे होते हैं ब्राउन अडीपोज टिश्यू BAT। तो उसमें जो न्यू बॉर्न यंग होते हैं उसमें ब्राउन अडीपोज टिश्यू होते हैं जो कि बर्न होते हैं और वो बहुत सारे हीट जनरेट करते हैं। जैसे ही एनिमल को कोल्ड शॉक लगने का खदशा होता है या होता है, उसका कांटेक्ट होता है कोल्ड इन्वायरमेंट से, तो ये ब्राउन अडीपोज टिश्यू बर्न आउट होते हैं और उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है जो कि उसको सर्वाइवल के लिए हेल्प करती है एनिमल को कि वो कोल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सके। इस पे मैंने एक लड़के का अपने मास्टर्स स्टूडेंट्स का ये टाइटल रखा था कि आप सर्वे करें जो न्यू यंग बॉर्न गोट्स में जो जानवर मर जाते हैं इन अर्ली स्टेज, उनको फिर आप ओपन करें, पोस्टमार्टम करें और देखें कि उनमें अडीपोज ब्राउन अडीपोज क्वांटिटी कितनी है, और उसकी फिर दूसरे भी पहलू देखें कि इनकी मॉर्टेलिटी या डेथ किस किस वजह से हुई है। तो इस पे रिसर्च की है और अभी भी और करने की ज़रूरत है। आगे चल के इस टाइटल को कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये अगर आप इन द एंड ऑफ दिस डिस्कशन I would like to show you some more slides about brown adipose tissue and white adipose tissue in the body and how they work. तो ये जो है ये नियोनेटल हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करते हैं। बॉडी टेम्परेचर जब लो हो जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यूज अलमाइटी अल्लाह ने हर यंग वन में रखे, और ये एज के हिसाब से हैं। जब एज बढ़ती है तो इनकी मिकदार कम होती चली जाती है। अच्छा, हीट लॉस किस तरह होती है? ये हीट गेन आपने देखा, हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, डाइजेशन ऑफ फीड, मस्कुलर मूवमेंट, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। फिर नियोनेट्स में ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी हीट जनरेट करता है जिससे एनिमल हाइपोथर्मिक कंडीशन से बच जाता है। अभी हाइपो और हाइपर में तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपो मीन्स लेस, हाइपर मीन्स हाई और रेज्ड। अच्छा, ये हो गया गेन। अब देखें कि हीट लॉस किस तरह हो रहा है। हीट इज ट्रांसफर्ड टू और फ्रॉम एन एनिमल, तो एनिमल की तरफ ट्रांसफर हो रही है या एनिमल से बाहर निकल रही है बाय द 4 स्टैंडर्ड फिजिकल फिनोमेना, दैट इज कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन एंड एवापोरेशन। कन्वेक्शन क्या है? It is a transfer of heat between two media at different temperatures such as a coat surface and the air. As such, convection heat transfer depends on the temperature gradient between the coat surface and air, the surface area and the air speed over the surface. तो कन्वेक्शन जो है वो एयर करंट के थ्रू जो है हीट लॉस होता है। फॉर एग्जांपल आपके बॉडी का टेम्परेचर, एनिमल बॉडी का टेम्परेचर रेज्ड है, तो जो उसके सरफेस, बॉडी सरफेस पे टेम्परेचर होगा, उसको जो हवा लगेगी तो एयर करंट लगेगा, उससे वो उसकी सरफेस बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होगा। तो ये हीट लॉस होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना बॉडी सरफेस आपका ओपन है और एयर की जो है वो स्पीड कितनी है। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितना सरफेस ज़्यादा ओपन होगा, उतनी हीट ज़्यादा लॉस होगी। तो ये तरीका जो है कन्वेक्शन कहता है। इसमें जो है एयर टचेज सरफेस ऑफ द बॉडी, इसको कन्वेक्शन कहते हैं। अच्छा, कंडक्शन क्या है? इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन टू मीडिया दैट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट। जब वो डायरेक्ट कांटेक्ट आए दिनो दी तो ध्यान कर पोपी कर just 1 minute please.
सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो कन्वेक्शन जब एयर करंट लगे बॉडी सरफेस को हीट लॉस हो, या एयर करंट लगे बॉडी सरफेस को और हीट गेन हो, ये हीट लॉस भी करेगा और हीट गेन भी इसी से होती है। तो दोनों सूरत में एयर करंट और बॉडी सरफेस के कांटेक्ट को कन्वेक्शन कहते हैं। कंडक्शन जब दोनों सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में हो, जैसे आप स्विमिंग पूल में बैठ गए या जानवर को आपने नहलाया है, उसमें पानी उसके ऊपर डाला है, तो या उसको किसी बड़े से नहर में जानवर को आप ले गए और वो अंदर उसमें तैर रहा है, तो पानी और जिस्म का आपस में कांटेक्ट होगा, उसमें या तो हीट लॉस होगी या हीट गेन होगी। तो वो फिर फिनोमेना है कंडक्शन का कि हायर कंसंट्रेशन से चीज़ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अगर हाई टेम्परेचर पानी का ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो बॉडी गेन करेगी, अगर पानी का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से लो होगा तो बॉडी टेम्परेचर लॉस करेगी। तो ये कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों की टर्मिनोलॉजी इस तरह है। अच्छा, रेडिएशन इज एब्जॉर्प्शन और इमिशन, या तो एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है, मीन्स इखराज करता है, या तो जज़ब करता है एब्जॉर्प्शन, और इमिशन इखराज करता है ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन at the body surface, and it depends on the skin surface temperature and area. तो रेडिएशन के थ्रू हीट लॉस भी होती है और हीट गेन भी होती है। वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि बॉडी से इखराज भी होते हैं और बॉडी में एब्जॉर्ब भी होते हैं। चौथा किस्म है एवापोरेशन, जिससे हीट सिर्फ लॉस ही होती है। हीट ट्रांसफर इज अ प्रोसेस वेयर बाय हीट इज लॉस्ट by evaporation of water and is dependent on the water vapor pressure gradient between the epithelial surface and the environment and the air speed over the surface. अब ये डिपेंड करता है कि एपिथेलियल सरफेस कितना ओपन है एनवायरनमेंट की तरफ, और फिर उसको एयर जो है उसकी स्पीड कितनी है, उस हिसाब से एवापोरेशन होती है। एवापोरेशन के दो किस्म हैं, आइज से टीयर्स आंसू बहना, या आप जब सांस एक्सपायर करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं एक्सपायर भी करते हैं, जब एक्सपायर करते हैं तो वेपर्स जो होते हैं हीट के वेपर्स या वाटर वेपर्स वो हवा में इखराज होते हैं जो आप देखते नहीं हैं। सर्दियों में कभी कभी ये देखते हैं, जो आप बाहर सर्दी में खड़े हों और मुंह से जब आप एक्सपायर करते हैं तो एक धुआं सा निकलता है, ये अभी अभी कभी किया होगा आपने, आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये हीट लॉस का एक तरीका है। अच्छा, वो एपिथेलियल सरफेस पे डिपेंड करता है और बाहर की एयर स्पीड पे डिपेंड करता है, उससे आप हीट लॉस कर सकते हैं एवापोरेशन के थ्रू। एवापोरेशन को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, हीट लॉस बाय एवापोरेशन। तो एवापोरेशन एक तो स्वीटिंग से होती है, पसीना आने से, सलाइवेशन से भी होती है, एंड रेस्पायरेशन के थ्रू भी एवापोरेशन होती है, with the relative importance varying between species। ये फिर इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट टाइप्स की हीट लॉस के तरीक़ेकार हैं। हॉर्सेस जो हैं वो बहुत ही प्रोफ्यूजली स्वीट करते हैं, ये उनमें स्वीट ग्लैंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है कि वो ज़्यादा स्वीटिंग होती है हॉर्सेस में और हीट लॉस होती है उससे। बट इन पिग्स, शीप एंड यूरोपियन कैटल, ज़ेबू कैटल की बात नहीं हो रही, ये यूरोपियन कैटल, स्वीटिंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एन इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ एवापोरेटिव हीट लॉस। इनमें इतना ज़्यादा इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है स्वीटिंग का, पिग्स, शीप और यूरोपियन कैटल में। However, in zebu cattle, the increased density of cutaneous sweat gland, उसमें स्वीट ग्लैंड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो सजेस्ट करती है कि उसमें स्वीटिंग जो है इम्पॉर्टेंट है फॉर हीट लॉस के लिए। प्रोफ्यूज सलाइवेशन एंड एक्सागरेटेड रेस्पिरेशन, बहुत ज़्यादा सलाइवेशन और बहुत टेकिप्निया कहें या एक्सागरेटेड रेस्पिरेशन, तेज़ तेज़ सांस लेने की वजह से, इंक्लूडिंग माउथ ब्रीदिंग, नाक के बजाय मुंह से सांस लेने से, और इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म इन द डिसिपेशन ऑफ एक्सेस बॉडी हीट इन एनिमल्स। जैसे ये डॉग्स में होते हैं, वो पेंटिंग करते हैं, बड़ी बड़ी तेज़ तेज़ सांसें लेते हैं और मुंह खोल के मुंह से सांसें ले रहे होते हैं, उससे वो हीट लॉस कर रहे होते हैं। तो ये इस तरह के ये इसमें एवापोरेटिव हीट लॉस के मैकेनिज्म्स हैं।
Difference between heat loss and gain. The balance between heat gain and heat loss is controlled. ये किस तरह कंट्रोल होता है? ये जो सारे मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किए हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय हीट रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ द हाइपोथैलेमस. ये खुद से वॉलंटरली नहीं हो रहे, बॉडी का मैकेनिज्म है जो कि ये सारी चीजें करवा रहा है, वो हाइपोथैलेमस में है. द एफरेंट इम्पल्सेस ड्राइव फ्रॉम पेरिफेरल हॉट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स. तो ये अब बता रहा है कि ये मैकेनिज्म किस तरह काम कर रहा है. एक होती हैं एफरंट इम्पल्सेस, दूसरी होती हैं इफरंट. So I think you may be aware about these terminologies because your first year and second year physiology, nervous system and other vascular systems, they are teaching these terminologies over there. Efferent impulses drive from peripheral hot and cold receptors. जो एफरंट होती हैं वो बॉडी सरफेसेस, बॉडी एक्सट्रीमिटीज से जो कि सिग्नल्स मिलते हैं वो ब्रेन की तरफ जाते हैं, तो उसे एफरंट कहते हैं. ब्रेन उनको रीड करके फिर बॉडी के कंट्रोल को, मैकेनिज्म को चलाने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन या डायरेक्शंस भेजता है. वो इफरंट इम्पल्सेस के थ्रू वापस आती हैं जो कि जाके बॉडी को कंट्रोल करती हैं. The efferent impulses drive from peripheral hot and cold receptors and temperature of the blood flowing through the hypothalamus. Hypothalamus के पास जाती हैं. The efferent impulses control, अब उसके mechanism के सिग्नल्स के रिस्पॉन्स में क्या करता है? जो efferent impulses होती हैं वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कंट्रोल करती है. या तो रेस्पिरेशन बढ़ा देगी या तो रेस्पिरेशन कम कर देगी. अगर हीट लॉस करना होगा तो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगी, अगर हीट लॉस को रोकना होगा, हीट को जनरेट करना होगा तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी. द कैलिबर ऑफ स्किन ब्लड वेसल्स, स्किन ब्लड वेसल्स के कैलिबर को कंट्रोल करेगी. एंड स्वीट ग्लैंड एक्टिविटी, उसको कंट्रोल करेगी कि स्वीटिंग हो या ना हो. ये सारा हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिग्नल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. एंड मसल टोन बढ़ना है या कम होना है, ये हाइपोथैलेमस डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अच्छा, हीट स्टोरेज, हीट जो है उसका स्टोरेज कैसे होता है? अकर्स एंड द बॉडी टेम्परेचर राइजेस. जैसे ही हीट स्टोर होगी तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा. व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, अगर रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ दोनों डिक्रीज हो जाएं, तो उसमें क्या होगा? हीट आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा और हीट लॉस कम होगा. ठीक है, जस्ट 1 मिनट. आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. उस्ताद की फॉर्म थी इसीलिए लेनी पड़ी. ठीक है, ही इज माय टीचर एंड ही माइट बी योर टीचर, ही माइट बी विल बी योर टीचर इन द डिपार्टमेंट ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. द मोस्ट सीनियर एंड वेरी टैलेंटेड मेंटर फॉर अस, डॉक्टर इस्माइल मेमन. अगर आपको चांस मिला इससे पढ़ने का तो बहुत कुछ सीखेंगे आप. बहुत ही सीनियर टीचर हैं लेकिन 1 साल में रिटायर होने वाले हैं. आई डोंट नो कि वो आपको पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे. सो हीट स्टोरेज तब स्टोर होती है जब रेस्पिरेशन की डेप्थ, गहराई कम हो जाए, उसका रेट कम हो जाए तो हीट स्टोर होना शुरू हो जाती है. कंस्ट्रक्शन ऑफ स्किन ब्लड वेजल्स, हीट को अगर रिजर्व करना है, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है अगेंस्ट कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड शॉक, कोल्ड एक्सपोजर, तो ब्लड वेजल्स को सुकर देते हैं, कंस्ट्रक्ट कर देते हैं.
तो उससे हीट जो है वो रिजर्व रहती है। सीजेशन ऑफ परस्पायरेशन एंड इंक्रीज मसल टोन, मसल टोन बढ़ जाता है और उससे हीट जनरेट होना शुरू होती है। अच्छा, हीट लॉस अकर्स, अच्छा ये हो गया हीट को स्टोरेज करना। अब हीट लॉस अकर होगा, हीट लॉस होगी किस तरह, अगर ये सारा फिनोमेना आप रिवर्स कर दें। इट मीन्स रेस्पिरेशन बढ़ जाए, उसकी डेप्थ भी बढ़ जाए, रेट भी बढ़ जाए तो हीट लॉस होगी। ब्लड वेजल्स कंस्ट्रक्शन होने के बजाय रिलैक्स हो जाएं तो भी हीट लॉस होगी। और मसल टोन जो है वो कम हो जाए तो भी हीट लॉस होगी। These physiological changes occur in and are the basis of the increment and decrement stages of fever. अब ये सारी जो फिजियोलॉजी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसकी बुनियाद पे या तो फीवर की स्टेजेस बढ़ेंगी या फीवर की स्टेजेस कम होंगी। तो ये सारी चीज़ें जनरल स्टेट्स पढ़ने का मकसद क्या है कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस को नज़र में रखना है आपने। फॉर एग्जांपल हमारे क्लिनिक पे कभी कभी जानवर आते हैं, तो अगर वो जानवर पैदल आए हैं या किसी गाड़ी में लेके आए हैं और उसको रेस्ट्रेन किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब जून जुलाई की सीज़न होती है तो टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। उसमें जब जानवर क्लिनिक पे पहुँचता है तो उसको इन्वायरमेंटल टेम्परेचर की वजह से उसकी ब्रीदिंग बढ़ी हुई होती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अगर इमरजेंसी केस नहीं है तो रिकमेंड करते हैं इसको आधा घंटा आप कैटल क्रश में लगा के छोड़ दें, तो आधे घंटे के बाद देखेंगे, ताकि उसकी जो वो ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस है जिसकी वजह से उसकी फिजियोलॉजी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब है वो कूल डाउन हो जाए और वो अडेप्ट कर ले इन्वायरमेंट को जहाँ पे वो आया है, उसके बाद उसको चेक करते हैं। अच्छी बात है इस तरह करना। अदरवाइज अगर आपने इमरजेंसी केस देखने हैं और उसको अगर ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस मिला है एनिमल को, तो वो आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पैथोलॉजी से। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन का पता होना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप उसको पैथोलॉजिकल वेरिएशन से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। आपको पता हो कि एनिमल का मॉर्निंग में टेम्परेचर क्या होगा, आफ्टरनून क्या होगा, इन द इवनिंग क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करके आएगा तो क्या होगा, अगर प्रेग्नेंट होगी बफलो तो उसकी टेम्परेचर में कितनी वेरिएशन होगी, अगर लैक्टेटिंग बफेलो है तो वेरिएशन कितनी आएगी। तो ये आप जो है उसको मिस्टेकनली ये ना समझ सकें, ये समझ लें कि ये कोई डिजीज़ है, कोई मसला है। तो इन चीज़ों का वेरिएशन को थोड़ा बहुत आपने ध्यान में रखना है। और अगेन आपको जो है आगे चल के बॉडी टेम्परेचर्स डिफरेंट एनिमल्स की रेंज याद करनी है। क्या याद करनी है? रेंज। एग्जैक्ट एक टेम्परेचर नहीं होगा, रेंज होगी। फॉर एग्जांपल बफलो, हमारे जो कुंडी बफलो है उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है 99 से 102 तक। तो 99 या 98 99.5 से 102.5 ये उसकी नॉर्मल रेंज है। उसके बीच में वो वेरिएशन करेगा अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल या दूसरे स्ट्रेस की वजह से। लेकिन 103 से शूट अप हो गया, इट मीन्स कि अब कोई ये हमें साइन दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। या 99 से कम हो गया तो ये भी साइन दे रहा है कि कोई प्रॉब्लम है जिसको डायग्नोस की भी ज़रूरत है और ट्रीटमेंट देने की भी ज़रूरत है। This was a brief introduction about these general systematic states. Now, from coming lecture, we will discuss one by one and in a very depth every aspect or every state, general state, systemic state for the learning purpose, so that you may be a very good practitioner or very good observer for these general systemic states. So this was a brief introduction about this. If you are interested and if we have time, then I can show you few slides about a very quick. I think it is very informative, very knowledgeful. We have 5 minutes left, and I think another PPT for brown adipose tissue and white adipose tissue is very much important for you, I think. Let me show you.
ये कोर्स हम मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वेटनरी नियोनेटोलॉजी, उसमें मैंने ये पीपीटी बनाई थी। तो ब्राउन और वाइट फैट में क्या फ़र्क है? ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट मेक्स अप द एडिपोज ऑर्गन टुगेदर विथ वाइट एडिपोज टिश्यू। तो जहाँ जहाँ पे वाइट फैट होगा उसके साथ साथ ब्राउन फैट भी है। यंग एनिमल्स में ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स। फिर उसकी क्वांटिटी डिफरेंट है, यंग में ज़्यादा होता है, एजड में कम होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू और ब्राउन फैट इज़ वन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फैट that humans and other mammals have. Its main function is to turn food into body heat. तो इसका मेन फंक्शन क्या है? फूड को बॉडी हीट में कन्वर्ट करता है। इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड गुड फैट। अगर ब्राउन फैट ज़्यादा होगा तो वो बंदा इतना हेवी वेट नहीं होगा, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बड़ी लीन और स्मार्ट रहेगी, इतना फैलेगा नहीं। जिसमें ब्राउन फैट या ब्राउन एडिपोज ज़्यादा क्वांटिटी में होगा वो बंदा दिखने में फिट और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अट्रैक्टिव होगी, इतना फैला हुआ नहीं होगा। मसल रिमेन्स, अच्छा इसमें मैं आगे ये बताऊंगा ब्राउन एडिपोज को ज़्यादा से अर्न किस तरह करते हैं। मच रिमेन्स अननोन अबाउट ब्राउन फैट। साइंटिस्ट आर जस्ट स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ब्राउन फैट डज। अच्छा, अभी तक इसमें रिसर्च चल रही है कि हम अपनी बॉडी का ब्राउन फैट को किस तरह से बढ़ाएं ताकि हमारी बॉडी इतनी फैटी ना लगे। इस पे रिसर्च चल रही है। इफ़ दे कैन फाइंड आउट हाउ वाइट फैट कन्वर्ट्स टू ब्राउन, वो कोशिश करेंगे वाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट करें। इट लीड्स टू अ ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी। तो ओबेसिटी की ये एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होगी। वाइट एडिपोज टिश्यू और वाइट फैट इज द रिजल्ट ऑफ स्टोरिंग एक्सेस कैलोरीज। जैसे ही ग्लूकोज या कैलोरीज ज़्यादा बॉडी लिमिट से ज़्यादा बढ़ेंगी तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं वाइट फैट में। When we consume too many calories, the body converts them into an energy reserve in the form of white fat. उसके मुकाबल ब्राउन adipose tissue or brown fat generates heat by burning calories. तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो होता है वो जनरेट होता है हीट बाय बर्निंग कैलोरीज। वो कैलोरीज को बर्न करता है, वो स्टोर करता है कैलोरीज को। और ब्राउन फैट क्या करता है? वो कैलोरीज जो बढ़ी हुई होती हैं उनको बर्न आउट कर देता है। व्हेन इट इज कोल्ड, ब्राउन फैट्स लिपिड रिजर्व्स आर डिप्लीटेड एंड इट्स कलर गेट्स डार्कर। जैसे ही कोल्ड इन्वायरमेंट होता है तो उसकी क्वांटिटी ब्राउन फैट की कम होना शुरू हो जाती है और उसका कलर भी डार्कर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, व्हाइट एडिपोसाइट्स और व्हाइट फैट सेल्स हैव अ सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट। व्हाइट एडिपोज टिश्यू आगे जाके पिक्चर्स में देखते हैं तो वो उसमें सिंगल ड्रॉपलेट होता है, लेकिन ब्राउन एडिपोज कंटेन्स मेनी स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स। उसमें स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होते हैं। ये मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये जो ड्रॉपलेट्स हैं छोटे छोटे, ब्राउन फैट में बहुत एक ही ड्रॉपलेट होता है। और जो है इसमें वाइट, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं। जैसे वाइट एडिपोज टिश्यू होगा तो वो एक ही ड्रॉपलेट होगा, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट, ये पूरा एक ड्रॉपलेट होगा। फॉर एग्जांपल यही है, ये वाइट है, ये पूरा एक ड्रॉपलेट है वाइट एडिपोज टिश्यू। ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जो कि कैलोरीज को बर्न करते हैं। White adipose tissue distribution affects metabolic risk, and brown fat mainly accumulates around the neck. Newborn have a higher proportion. ब्राउन फैट न्यूबॉर्न में ज़्यादा होता है, अडल्ट में कम होता है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। इंटरेस्टिंगली बता दूं कि ब्राउन फैट ह्यूमन बींग्स में फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है। और ये यंग में ज़्यादा होता है, ओल्ड एज में और भी कम हो जाता है। Experiments have shown that adding more between fat to mice have been found to increase the rate. अच्छा, वेरी क्विक, ये एक्सरे मशीन से कुछ एक्सरे फिल्म्स बनाई गई हैं कि ये दिखा रहे हैं कि आपका ब्राउन फैट कहाँ कहाँ पे है। स्पाइनल कार्ड के अराउंड, ये देखें, ये स्पाइनल कार्ड है, कनगी की हड्डी, उसके अराउंड ये एडिपोज टिश्यू है।
ब्राउन एडिपोज टिश्यूज, ये स्पाइनल कार्ड आ रहा है यहाँ से, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। अच्छा, ये देखें नेक के रीजन पे और शोल्डर के रीजन पे, और ये विसरल ऑर्गन्स के अराउंड है, एडिपोज टिश्यू है। ये बता दिया सिंगल ड्रॉपलेट हैं, ये इसमें मल्टीपल ड्रॉपलेट्स हैं। अच्छा, ये एक मैकेनिज्म है कि ब्राउन एडिपोज जो टिश्यूज हैं वो किस तरह से ज़्यादा काम करते हैं, वो एक्टिव किस तरह हो जाते हैं, हीट लॉस करने में हेल्प किस तरह करते हैं। ज़्यादा मिर्ची खाने से वो हीट लॉस होती है, ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं। सेंसरी नर्व से ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट में लगने से वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू एक्टिव हो जाते हैं, कैलोरीज लॉस करते हैं। और एक्सरसाइज, हार्ट पंपिंग, लिवर, थायराइड बढ़ेगा तो भी ब्राउन एडिपोज टिश्यू बढ़ेंगे। ये सारे मैकेनिज्म मिलके हीट को लॉस करते हैं बॉडी से, कैलोरीज को लॉस करते हैं। तो ज़्यादा मिर्ची वाले खाने से भी आप लीन हो जाते हैं। ये देखें फीमेल में ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है क्वांटिटी में, मेल में कम है। I think your time limit is over, so you might be going. 2 मिनट ऊपर हो गए। Let me get your attendance then if you want to go.